آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہی آج کی سرخیاں۔ ٹیل اویو میں ایئرپورٹ پر حزب اللہ کی میزائل گرنے کی خبر، ویڈیو میں دکھ رہا بڑا دھماکہ، اسرائیل نہیں چھاپ رہا خبر۔ حزب اللہ نے اسرائیلی راجدھانی پر داغے درجنوں راکٹ، جان بچا کر بھاگتے لوگوں کی تصویریں آئیں سامنے۔ ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹ اور سڑک پر ہوئے 2 الگ الگ حملے، 4 اسرائیلی بری طرح سے زخمی۔ امریکی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت، محمود عباس نے جتائی الگ فلسطین کی امید، حماس نے کہا وعدہ نبھاؤ جنگ رکواؤ۔ اور غزہ میں اسرائیل نے برسایا 85,000 ٹن بارود، سیکنڈ ورلڈ وار کی سنک کو چھوڑا پیچھے۔ آزاد ورلڈ انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ آج 6 نومبر 2024 ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رات 10 بجے کا اسپیشل شو دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ پہلی خبر جو ہے اس میں 4 تصویریں ہیں۔ پہلی تصویر میں ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ایک دھماکہ ہو رہا ہے۔ ویڈیو نہیں دکھا رہا ہوں، دھماکے سے اٹھتا غبار دکھا رہا ہوں۔ یہ غبار بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی راجدھانی ٹیل اویو کا بین گورین انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اور یہاں یہ دھماکہ ہو گیا، حزب اللہ کی میزائل آ کر گری ہے۔ اب یہ گڈھا دیکھیے، اس میزائل کا بتایا جا رہا ہے یہ گڈھا ہوا ہے، لیکن یہ علاقہ کہا تو کچھ خبروں میں جا رہا تھا کہ یہ رن وے پر گرا ہے، جہاز تباہ کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں، کوئی رن وے یا کوئی جہاز تباہ نہیں ہوا ہے میرے مطابق، کیونکہ میں نے ایسا کوئی ویڈیو کوئی وہ فیکٹ نہیں دیکھا۔ یہ گڈھا جو ہوا ہے یہ پارکنگ لاٹ میں ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہاں ایئرپورٹ ہے، یہاں تک آ جانا کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کی میزائل کو نہ روک پائی، یہ بڑے شرم کی بات ہے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم اور انہیں سنبھالنے والوں کے لیے۔ یہ تیسرا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو ہے ہوائی جہاز کے ونگ کا، وہاں سے ویڈیو لیا گیا، اب وہ فوٹو لیا گیا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیے جہاں یہ ونگ دکھ رہا ہے اس سے کتنی دور ہے وہ کالا جو دھواں اٹھ رہا ہے، بالکل قریب میں کچھ میٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی ایئرپورٹ ویسینٹی میں یہ آ کر میزائل گر جاتی ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کا اسے روک نہیں پاتا ہے۔ اگر یہ پلین پر گر گئی ہوتی میزائل تو کیا ہوتا ہے، کتنے پیسنجرز کی جان جا سکتی تھی۔ فی الحال اسے جو ہے کچھ اور ہینڈلز سے چھاپا گیا، انہوں نے ایئرپورٹ کی بھی OSNIT جو وارفیئر ہیں انہوں نے چھاپا اور ایئرپورٹ کی آپ کو باہر سے تصویر دکھائی ہے جس میں آپ کو ایئر کنٹرول ٹاور بھی دکھ رہا ہوگا اور دھواں اڑتا ہوا دکھ رہا ہے، وہی گڈھے ہیں اور ایک کار ٹوٹی دکھائی۔ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ آج صبح ہوا تھا، لیکن شام کو اس کی خبر کیسے آئی؟ جب ویڈیو آئے تب آئی یہ خبر، اس سے پہلے نہیں آ رہی تھی۔ حزب اللہ نے تفرزن بیس کو اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا تھا اور یہ بالکل بین گورین ایئرپورٹ سے ملی ہوئی ہے، یہ ملٹری اڈا اسرائیل کا۔ تو یہ ساؤتھ میں ہے، ٹیل اویو کے ساؤتھ میں۔ یہاں پر زبردست طریقے سے راکٹ بیرج داغا گیا، کوئی میزائل نہیں، یہ دوسری خبر کہہ رہی، دونوں طرف کی خبریں لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ راکٹ بیرج داغا گیا، اس میں سے ایک راکٹ جو ہے وہ پارکنگ لاٹ میں آ کر اس نے ہٹ کیا اور وہاں پر تباہی ہوئی، جو گڈھا ہوا جو بھی ہوا۔ دوسرے راکٹس کو روکنے کے چکر میں جو انٹرسیپٹرز چھوڑے گئے تھے ڈیفنس سسٹم سے، اس کا جو کریٹر، اس کا جو ایک ٹکڑا تھا ایک انٹرسیپٹر کا یا پورا انٹرسیپٹر، وہ آ کر کار پر گرا تو کار کی یہ تصویر سامنے آئی، اس کا کچومر بن گیا۔ خیر ہاں، میں نے ایک اور جو ہے وہ ویڈیو دیکھا ہے جس کے میں 2 آپ کو سین دکھاتا ہوں کہ یہاں پر اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ بھاگ کر اپنی جان بچا رہے ہیں۔ ایک آپ پہلے دیکھ لیجئے، یہ اسرائیل کا جھنڈا لگا عمارت ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں اس کے نیچے آپ کو کلوز شاٹ میں دکھے گا، لوگ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر سائرن بج رہے تھے۔ بہت سے ہم آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں نہیں دکھا پاتے ہیں، وہ ویڈیو ہمارا آگے بڑھتا ہے نہیں، نہ مونیٹائز ہوتا نہ کچھ۔ دوسری طرف آپ کو دیکھے گا دوسری طرف سے بھی لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ 2 ہم نے آپ کو اسکرین شاٹ 2 الگ الگ اینگل کے دکھائے، وہ دوسری طرف کی بلڈنگ سے آ رہے تھے، وہاں جماوڑا لگا ہوا تھا۔ یہ ہوا یہ کہ یہ بھی ٹیل اویو کی تصویریں اور یہ بالکل شام میں آپ یوں سمجھ لیں کہ 7:30 بجے سامنے آئی ہیں۔ یہ کچھ نیوز نیٹ ورک نے بتایا اور اس میں ایئر ریڈ سائرن بھی سنائی دے رہے ہیں، اور سائرن اس لیے سنائی دے رہے ہیں کیونکہ زبردست طریقے سے راکٹوں کی بوچھار لبنان کی طرف سے آئی۔ تو وہ صبح ایئرپورٹ کے تھے اور شام میں پھر بوچھار آ گئی جو شہری علاقوں میں حزب اللہ کی۔ تو یہ سب لوگ شیلٹر کی طرف بھاگ رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ فی الحال ایک اور خبر یہ آئی کہ
जो सेटलमेंट है शिलो में, ये रमल्ला के नॉर्थ में है। रमल्ला वेस्ट बैंक की अभी ऑफिशियल राजधानी बताई जाती है, हालांकि उन्हें तो ईस्ट जेरूसलम चाहिए, लेकिन फिर भी रमल्ला के करीब ये यहूदियों का, ज्यूज़ का सेटलमेंट है जिसका नाम शिलो है। और यहाँ पर एक फ़लस्तीनी लड़के ने आकर सीधे जो है वो गोलियाँ चला दी, बल्कि फोर्सेस ने गोली चलाई है फ़लस्तीनी पर, क्योंकि उस फ़लस्तीनी ने गोली मारकर 2 इजरायलियों को यहाँ पर ज़ख्मी कर दिया बुरी तरीके से। फिर इजरायली फोर्सेस ने उस फ़लस्तीनी पे गोली चलाई और ऐसी चलाई कि बस सीधे उसकी जान ले ली। एक और द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर ये कहती है कि 2 और इजरायली बुरी तरीके से ज़ख्मी हुए हैं और ये टेरर शूटिंग बताई गई है शिलो के करीब सेटलमेंट में, और जबकि इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है जो जिस बंदे ने गोली चलाई थी। शिलो की खबर पहले भी थी। इसके अलावा एक रैमिंग की भी खबर है कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की सड़क पर, लिहाजा उसे पकड़ लिया गया है फ़लस्तीनी को। 2-3 खबरें थीं ये जो आज हमले की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में सदारती इंतखाबात जो हुए वो उसमें जीत गए, लगभग हो ही गए, रिज़ल्ट का बस ऐलान होना बाकी है। तो प्रेसिडेंशियल चुनाव में, इलेक्शन में उनको जीत मिली है और वापस वो वाइट हाउस जाने वाले हैं। ऐसे में फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के चीफ महमूद अब्बास, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है, कहा कि जी बहुत बढ़िया किया, आपने अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा इलेक्शन लड़ा, और अब हमें जो है पूरा यकीन है कि आप फ़लस्तीनियों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे। फ़लस्तीनियों की जो उम्मीदें हैं एक स्टेटहुड की, एक अलग देश, एक अलग राज्य, एक अलग स्टेट की, कि हमारा फ़लस्तीन अलग हो, उसके सिमत, उसकी डायरेक्शन में आप कुछ ठोस कदम उठाएंगे और इज़राइल और फ़लस्तीनियों के बीच जो एक लंबा कशीदगी का दौर चलता चला आ रहा है जिसमें बड़े जुल्म हुए हैं वो ख़त्म होगा, और ये आपकी कोशिशों से होगा। ये महमूद अब्बास ने उम्मीद जताई। हमास ने क्या कहा? हमास ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी हारी है जो बाइडेन की, कमला हैरिस जो हारी हैं, वो एक नेचुरल प्राइस है उनकी हरकतों का, जो उन्होंने क्रिमिनल स्टांस में गज़ा में जो हो रहे थे जुल्म, उन सब की जिस तरीके से हिमायत की और उन जुल्मों के बावजूद हथियार भेजते रहे इज़राइल को, ये सब कुदरत की तरफ से, ये हार, ये शिकस्त कुदरत की तरफ से उन सब गुनाहों का और उस उन गुनाहों में साझीदार बने रहने का खामियाजा है, सज़ा है। ट्रंप की जीत पर जो है हमास ने एक बात कही है कि उम्मीद ये करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़ुबान पर कायम रहेंगे। हो सकता है वो ज़ुबान पर कायम रहने वाले मर्द हों, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं चाहूँगा तो 1 घंटे में जंग रुक जाएगी। अब हम कहते हैं कि वो घंटा आ गया है। आप उन घंटों में, कुछ घंटों में जो जंग रुकवाने की बात कर रहे थे, आप कोशिशें कीजिए। भले आपने अभी हलफ ना उठाया हो, आपने ओथ ना ली हो, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे तो जंग रोकने के लिए कोशिशें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि भले आप जनवरी में ओथ लें, लेकिन दुनिया को तो पता ही है और नेतन्याहू को भी पता है कि आप ही सदर बनेंगे। तो आप कोशिशें करें, प्रेशर डालें, हम देखते हैं कि आप अपनी ज़ुबान पर कैसे कायम रहते हैं। नेतन्याहू और उनके जितने भी कट्टरपंथी मिनिस्टर्स हैं, नाच नाच के, गा गा के, बालूसाइयाँ बांट बांट के जश्न मना रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और उनके तमाम कट्टरपंथी मंत्री गा रहे हैं, अपना डोनाल्ड ट्रंप आयो रे भैया, अपना डोनाल्ड ट्रंप आयो। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि उनके लिए ग्रेटर इजराइल आ गया हो। क्या डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात हो चुकी थी? लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका के 79% 79% ज्यूज़ ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कमला हैरिस को वोट किया था। तो कोई लॉबी तो तैयार की नहीं थी नेतन्याहू ने अमेरिका में इनके लिए, तो क्या कोई इनाम फिर भी देंगे बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप? ये देखना होगा। ईरान ने कहा है कि यार बाइडेन बन जाए, चाहे कमला हैरिस बन जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप बन जाए, कोई राष्ट्रपति बन जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पैदा, कोई सर्दी गर्मी नहीं है, हमें कोई डिफरेंस नहीं हम देखते, न ट्रंप में न बाइडेन में। हमारे लिए सब एक से हैं, सबका नज़रिया एक सा है। ये ईरानी गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन है मैडम फातिमे मोहजेरानी, इन्होंने ये बात कही है
हुकूमत की तरफ से कही है। हाँ, एक ईरान से और ख़बर ये है कि ईरान 4 लोगों को अब मौत की सज़ा देने जा रहा है। इनका रिश्ता, इनका जो मूल है वो अज़रबैजान है, और इन सब पर इल्ज़ाम ये है कि अभी करंट रिपोर्ट ने खबर दी है फास्ट न्यूज़ के हवाले से कि इन पर इल्ज़ाम ये है कि ये इज़राइल के लिए ईरान में रहकर जासूसी कर रहे थे। इज़राइल को ईरान के अड्डे, मिलिट्री अड्डे, स्ट्रेटजिक अड्डे, बहुत सी जानकारियाँ, खुफिया जानकारियाँ, वो सब मुहैया करवा रहे थे इज़राइल को। तो ये लोग लंबे वक्त से यहाँ जासूसी कर रहे थे। ईरानियन स्पेशल फोर्स ने इन्हें पकड़ा है और ये पता लगा है कि ये मोसाद के साथ मिले हुए थे। अब इन्हें मौत की सज़ा दी जाएगी। एक एम्बुलेंस और कुछ एम्बुलेंसेस की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ये आज गज़ा में एम्बुलेंसेस पहुँची और ये यूएन की एम्बुलेंस बताई जा रही हैं। हालांकि ये जहाँ तक है हेल्थ केयर से जुड़े हुए जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं 101 उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 80 लोगों को निकालने गए थे गज़ा से। वो 80 पेशेंट्स जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे, उन्हें आज गज़ा से निकाला गया। कारेम अबू सलेम क्रॉसिंग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उन्होंने इन मरीज़ों को दूर दराज के अस्पतालों में पहुंचाया है ताकि इनका वहां पर मुकम्मल इलाज हो सके। यूएन की तरफ से ये गाड़ियों का काफिला, आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, बसेस, ये सब इन गज़ा के लोगों को सेंट्रल गज़ा से बाहर निकाल कर पहुँचे हैं। खैर, अब इनको इलाज मिल जाएगा, इनकी ज़िंदगी बच जाए, वही अच्छी बात है। गज़ा में अस्पतालों की क्या हालत है इस ग्राफिक से देख लें। ये कमाल अदवान अस्पताल का नज़ारा है। ये इज़राइल की करतूत है कि अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। वहाँ का ये NICU है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ ताज़ा बच्चा जो पैदा हुआ होता है, जिसे रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में, ये वो यूनिट है। उसको इस तरीके से बना दिया है, बच्चे जो पैदा होंगे जिन्हें फ़ौरन केयर की ज़रूरत होगी, अब उन्हें कहाँ इलाज मिलेगा। फ़लस्तीन की नई नस्ल पर, फ़लस्तीन के मुस्तकबिल पर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है और इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई है। औरतों और बच्चों को मार देना, समझिए ये बहुत लंबी प्लानिंग है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 85,000 टन बारूद और बम इज़राइल ने बरसाए हैं गज़ा पर, और ये आंकड़ा 85,000 टन का ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिकॉर्ड को इसने पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड वॉर में इतना बारूद इस्तेमाल नहीं है। सोचो कितने साल, कितनी लंबी और कितने ममालिक की जंग थी, तब इतना बारूद नहीं बरसा। ये बताया जा रहा है जितना अकेले गज़ा पर इज़राइल ने बरसा दिया है, और दुनिया इसे देख रही है और लगातार बारूद दे रही है। ये बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के आंकड़े को इस जेनोसाइड में गज़ा में जो जारी है, बारूद बरसाने के मामले में क्रॉस कर दिया गया है। पैलेस्टीनियन एनवायरनमेंट क्वालिटी अथॉरिटी ने इस बात का दावा किया है। फिलहाल ये कुछ खबरें थी, उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब पर मेरा सिर्फ एक और चैनल है, दुनिया टुडे, उस पर तस्वीरों के साथ वीडियो आते हैं, वहाँ भी आपको बंदा दिखेगा। मेरा तीसरा कोई चैनल नहीं। पहले मैंने जिस चैनल में भी काम किया मेरे दोस्तों वगैरह के चैनल थे, अब मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मेरा कोई भाई, भांजा, भतीजा कोई यूट्यूब पर नहीं है। अगर मेरे जैसे थंबनेल के साथ या मेरे जैसे टाइटल के साथ कोई वीडियो लगाए तो आप उसे महज इत्तेफाक मानिए, संयोग मानिए, प्रयोग मानिए, चोरी मानिए या कॉपी कैट मानिए, जो भी चाहें आप माने। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपने मेरे ज़रिए एक ऐसा मुकाम इस्टेब्लिश कर दिया है कि लोग अब उस राह पर आगे बढ़ रहे हैं अपनी अपनी कामयाबी के लिए, जबकि वो लोग मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेकर बैठे हैं। मेरी तरफ से उन सबको मुबारकबाद। मैं और प्रोग्राम बनाऊंगा, आप उसे भी कॉपी कीजिएगा। आपका घर ज़रूर चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।